بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ محترم عزیز دوستو، آج کی ہماری ویڈیو بنی اسرائیل کے قوم کی تاریخ اور تابوت سکینہ کے بارے میں ہے۔ بنی اسرائیل قوم کی اصل تاریخ کیا ہے اور تابوت سکینہ کیا تھا؟ یہودی اس کو آج کیوں حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اس کے پیچھے ان کی کون سی سازشیں ہیں اور اس کو حاصل کر کے یہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تو چلیے بڑھتے ہیں آج کی خوبصورت ویڈیو کی جانب۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کی معلومات میں بہت زیادہ اضافہ ہونے والا ہے۔ محترم عزیز دوستو، پوری دنیا میں یہودی آج بھی ماہرین آثار قدیمہ کا روپ دھارے ملکوں کھدائی کرتے پھر رہے ہیں، لیکن آج بھی اس میں ناکام ہیں۔ تابوت سکینہ کیا تھا، اب یہ جانتے ہیں۔ یہ صندوق یہودیوں کے لیے زندگی موت کا مسئلہ کیوں بنا ہوا ہے؟ یہودی صندوق کا کیا کرنا چاہتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم قرآن پاک میں دیکھتے ہیں اس صندوق کی کیا اہمیت تھی اور اس میں کیا تھا۔ ہمارے لیے قرآن پاک سے بڑھ کر اور کوئی حوالہ نہیں۔ قرآن مجید کا ترجمہ ہے اور ان سے ان کے پیغمبر نے کہا، اس کی بادشاہی کی علامت یہ ہے کہ وہ صندوق تمہارے پاس آئے گا، جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے سکون اور اطمینان کا سامان ہے، اور جس میں آل موسیٰ و ہارون کی چھوڑی ہوئی چیزیں ہیں جسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اگر تم ایمان والے ہو تو یقیناً اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں لفظ تابوت کا مطلب صندوق اور سکینہ کا مطلب سامان ہے، جس سے دل کو سکون اور راحت ملے۔ یعنی اس صندوق میں ایسا سامان تھا جس کی برکت سے دلوں کو مضبوطی اور تسکین ملتی تھی۔ تفاسیر کے مطابق یہ صندوق سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام پر جنت سے اتارا گیا تھا۔ یہ شمشاد نامی لکڑی سے بنا ہوا تھا۔ اس مقدس اور متبرک صندوق میں حضرت آدم علیہ السلام اپنا ضروری سامان رکھا کرتے۔ یہ صندوق نسل در نسل چلتا ہوا حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا۔ ان کی اولاد بنی اسرائیل یعنی اولاد اسرائیل کہلائی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام یہودا تھا، جن کی نسل کو ہم یہودیوں کے نام سے پکارتے ہیں۔ یہ صندوق بنی اسرائیل کے پیغمبروں کے پاس آ گیا۔ اس کے بعد یہ صندوق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، اور یہ صندوق آپ علیہ السلام کے زیر استعمال رہا۔ اس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنا عصا مبارک اور آپ پر نازل ہونے والی تورات کے لوحے رکھا کرتے۔ یعنی اس صندوق میں انبیاء کے معجزات کی اشیاء محفوظ تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے دنیا سے رخصت ہونے پر ان کے لباس، عصا مبارک، امامہ مبارک اور آسمان سے اتارا جانے والا مون سلوا بھی اس صندوق میں محفوظ کر دیا گیا، اور یہ صندوق قوم کے سرداروں کی تحویل میں چلا گیا۔ یہ معجزات اللہ کی طرف سے ان انبیاء پر اتارے گئے تھے، چنانچہ ان کی برکت سے اس صندوق کو خاص فضیلت حاصل تھی۔ بنی اسرائیل کے لوگ اس صندوق کا بہت احترام کرتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس صندوق کی برکت سے ان کو بہت زیادہ فوائد حاصل ہوتے۔ کوئی آسمانی آفت آتی تو یہ لوگ اس صندوق کے سامنے بیٹھ کر دعا کرتے اور وہ آفت حیرت انگیز طور پر ٹل جاتی۔ کبھی زلزلہ، سیلاب، خوفناک آندھی اور طوفان آتا تو یہ لوگ تابوت سکینہ کے وسیلے سے دعا کر کے اس سے نجات پا لیا کرتے۔ اسی طرح جنگ و جدل کے دوران بڑے سے بڑے لشکر کے ساتھ مقابلہ کرتے وقت صندوق فوج کے آگے لے کر چلتے، اس کی برکت سے ان کے حوصلے بھی بلند ہو جاتے اور دشمن کی افواج پر کم سے کم جانی نقصان کے بدلے غالب آ جاتے۔ خاص موقعوں اور تہواروں پر یہ لوگ صندوق کو عزت و احترام سے کندھوں پر اٹھا کر جلوس نکالا کرتے۔ اس مقدس صندوق کی حفاظت کے لیے فوج کا ایک خصوصی دستہ تعینات تھا۔ یہ قوم بہت عجیب و غریب عادات کی مالک تھی۔ ایک طرف تو صندوق اور اس میں موجود اشیاء کا احترام اس قدر کرتے کہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، دوسری طرف اللہ کے احکامات سے مکمل روگردانی ان کا معمول بن چکا تھا۔ یہ قوم نہایت ضدی، اڑیل، مغرور اور سرکش قوم تھی۔ حد سے زیادہ لالچی، مال و دولت سے محبت کرنے والے اور ظالم تھے۔ اپنے انبیاء اور علماء کی روک ٹوک پر ان کو خوفناک اذیتیں دیا کرتے۔ جب ان کی سرکشی حد سے بڑھنے لگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دینے کے لیے ان پر قوم عمالقہ کو مقرر کر دیا۔ قوم عمالقہ کے بادشاہ جالوت نے ان پر انتہائی زبردست حملہ کیا، ان کی بستیاں اجاڑ دیں، شہروں کو جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا دیا، بے شمار لوگوں کو قتل عام کر کے ہلاک کر دیا اور ان کا تابوت سکینہ چھین کر اپنے ساتھ لے گیا۔
बादशाह जालूत ने उस ताबूत को गंदगी के ढेर में फेंक दिया। ताबूत की इस बेहुरमती पर अल्लाह की तरफ से कौम अमालका पर अल्लाह का अजाब नाज़िल हो गया। जिस शहर के गंदगी के ढेर पर यह संदूक फेंका गया था, उस शहर में एक अजीब वबा फूट पड़ी जिसका किसी हकीम और मुआलिज के पास कोई इलाज न था। लोग बहुत तेजी से लुक़्मे अजल बनने लगे। लोग परेशान होकर हाकिम शहर के पास पहुंचे। उन्होंने नजूमियों को जमा किया और उनसे इस अजाब की वजह मालूम करना चाहिए। नजूमियों ने हिसाब लगाकर बताया, इस अजाब की वजह ताबूत सकीना की शदीद बेहुरमती है। वो लोग इस संदूक को बनी इसराइल को किसी भी सूरत में वापस नहीं करना चाहते थे। चुनांचे ये संदूक एक दूसरे शहर में पहुंचा दिया गया। हैरत अंगेज तौर पर संदूक पहुंचाने के बाद उस शहर में भी वही खौफनाक मर्ज फूट पड़ा और हजारों की तादाद में रोजाना इंसान मरने लगे। उस संदूक की वजह से उस कौम के 5 शहर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। मुख्तलिफ आफात व अमराज ने उस कौम को अपनी लपेट में ले लिया। उसके बाद फैसला किया गया यह ताबूत वापस बनी इसराइल को दे दिया जाए। चुनांचे संदूक को एक बैलगाड़ी में रखा गया और उसे शहर से निकाल दिया गया। खुदा की कुदरत से बैलगाड़ी संदूक को लेकर सीधा बनी इसराइल के मुल्क की तरफ रवाना हो गई। दूसरी जानब उस जमाने में बनी इसराइल में हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम माबूस किए गए थे। हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम तालूत को, जो एक नेक इंसान था, उसको बनी इसराइल का बादशाह बनाना चाहते थे, जबकि बनी इसराइल हस्बे मामूल सरकशी इख्तियार किए हुए थे। अपने नबी की किसी बात पर अमल करने को तैयार न थे। आखिरकार उनके सरदारों ने जान छुड़ाने की खातिर हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम से मुतालबा कर दिया कि अगर वो अल्लाह के सच्चे नबी हैं और चाहते हैं कि उनका हुक्म माना जाए तो दुआ करें कि उनका कीमती और मुकद्दस ताबूत सकीना उनको वापस मिल जाए। अगर उनकी दुआ कबूल हो गई तो वो उनकी हर बात तस्लीम कर लेंगे। इस पर हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम ने हुक्म रब्बी से उनके साथ वादा कर लिया कि ताबूत सकीना अगले रोज सुबह तक खुद बहुत उनके पास पहुंच जाएगा। इस पर बनी इसराइल के सरदारों ने उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो लोग कौम अमालका की गज़बनाकी से अच्छी तरह वाकिफ थे। वो जानते थे कि उनके कब्जे से उस ताबूत का वापस मिलना एक नामुमकिन बात है। अगले रोज बैलगाड़ी पर लदा हुआ ताबूत सकीना उनको दोबारा मिल गया, जिस पर हस्बे वादा उन्होंने अपने नबी का हुक्म मानकर तालूत को अपना बादशाह तस्लीम कर लिया। ताबूत सकीना दोबारा हासिल होने पर उस कौम के हालात में एक बार फिर बेहतरी आने लगी, लेकिन उनके आमाल वही रहे। फिर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का दौर आया। उस वक्त तक ये कौम खाना बदोशों की तरह जिंदगी गुजारती थी और ताबूत सकीना भी एक खेमा में रखा करती थी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उनके लिए एक इबादतगाह तामीर करने का इरादा किया, जिससे उनके बाद उनके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुकद्दस के मुकाम पर अजीमुशान इबादतगाह की शक्ल में पाया तकमील तक पहुंचाया। ताबूत सकीना को खेमे से निकालकर उस इबादतगाह में रख दिया गया। उस इबादतगाह के ताबूत सकीना वाले हिस्से में सिवाय अंबिया और सबसे बड़े आलम के किसी को जाने की कोई इजाजत ना थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात के बाद आपकी अंगूठी मुबारक भी उसी ताबूत में महफूज कर दी गई। जब हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम का जमाना आया, उस वक्त तक ये कौम इस कदर गुमराही में डूब चुकी थी कि अल्लाह के पैगंबरों की तजलील करना उनका मामूल बन चुका था। जब हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया गया और बाद में उनके बेटे हजरत यहया अलैहिस्सलाम को भी इंतहाई बेरहमी से कत्ल किया गया, तो अल्लाह ताला उनसे सख्त नाराज हो गया। ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 586 साल पहले की बात है। हजरत यहया अलैहिस्सलाम के कत्ल के थोड़े ही अरसे बाद इराक के बादशाह बख्त नसर ने इसराइल पर बहुत बड़ा हमला कर दिया। इसराइल की ईंट से ईंट बजा दी, लाखों यहूदी कत्ल किए और लाखों को गुलाम बना लिया। बैतुल मुकद्दस को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया और उसमें रखे ताबूत सकीना को कब्जे में लेकर अपने साथ इराक ले गया। यह वक्त बनी इसराइल पर तारीख में सबसे कड़ा वक्त था। बख्त नसर ने ताबूत सकीना का क्या किया कि आज तक किसी को मालूम ना हो सका। ताबूत सकीना हमेशा के लिए यहूदियों से छीन गया। साथ ही यहूदी कौम, वो कौम जो तारीख की सबसे बेहतरीन कौम थी, जिसे अल्लाह की लाडली कौम होने का फख्र हासिल था, अपनी बदआमालियों की वजह से हमेशा के लिए अल्लाह की राह में मलऊन हो गई और दुनिया में रुस्वा होकर रह गई। आज यहूदियों को 2000 साल बाद दोबारा इसराइल की सरजमीन पर कदम जमाने का मौका मिला है। अभी भी इस कौम की वही आदात व अतवार हैं, वही ज़ुल्म व जुबर, धौंस धांधली,
मुतकब्बर, खुद को सारी दुनिया से आला समझने का खन्नास, अल्लाह की तरफ से लानत ज़दा हो जाने के बावजूद भी अभी तक अल्लाह के लाडली कम होने की खुशफहमी मौजूद है। वही माल और दौलत का लालच और माल जमा करने के वही सदियों पुराने शैतानी तरीके। आज भी उसी जगह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम वाली इबादतगाह तामीर करने का जुनून और उसी तरह ताबूत सकीना को दोबारा हासिल करके हैकल सुलेमानी में रखने का बुखार इनके सर पर चढ़ा हुआ है। ये आज भी मस्जिद अक्सा की मगरिबी दीवार जो टाइट्स के हमले में बच गई थी, उसको हैकल सुलेमानी की आखिरी निशानी समझकर उससे लिपट लिपट कर धड़े मार मार कर रोते हैं। अपनी अजमत के दिनों को याद करके रोना उनकी इबादत बन चुका है। लेकिन अभी तक ये कौम नासमझ है। उनके जुनून और माजी से लिपटे रहने का ये आलम है कि पूरे कुरे अर्ज को खोद कर उसमें से ताबूत सकीना तलाश करते फिर रहे हैं। उनको अपने मसाया यानी आखिरी मसीहा का बेसब्री से इंतजार है। इसके झंडे तले एक बार फिर इनको पूरी दुनिया पर गलबा हासिल हो जाएगा। उस एक आंख वाले दज्जाल से इनको इस कदर मोहब्बत है कि पूरी दुनिया में उसकी एक आंख की निशानी का प्रचार करते फिर रहे हैं। उसकी आमद पर मुत्तहिद होने के लिए कई खुफिया तंजीमें बना रखी हैं जो उसे खुश आमदीद कहकर उसे खुदा मान लेंगी। ताबूत सकीना की मौजूदा जगह के बारे में मुख्तलिफ लोग कयास आराइयां करते फिर रहे हैं। इस पर अंग्रेज ईसाइयों और यहूदियों ने बड़ी रिसर्च की है, लेकिन हतमी तौर पर सारे एक नुक्ते पर मुत्तफिक नहीं है। लेकिन जो सबसे मजबूत कयास थ्योरी लगती है वो ये है कि इस वक्त ये संदूक या ताबूत हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल में कहीं दफन है और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का महल फलस्तीन में आज भी कहीं गुम है। इस महल को यहूदी काफी अरसे से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और आए दिन वहां बैतुल मुकद्दस में खुदाई करते रहते हैं। बहरहाल कोशिशें जारी हैं, लेकिन ताहाल उन्हें नाकामी का सामना है और हतमी तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता कि यह ताबूत इस वक्त कहाँ है। मोहतरम अजीज दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और आने वाली नई वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद घंटी के बटन को जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।